हाँ हम लोग ये क्या चीज है एंड ओके दिस वन फायरफॉक्स सर्वर नॉट फाउंड क्या नेट में कनेक्टेड नहीं है क्या तुम्हारा? क्यों नहीं हुआ भाई? तो फिर एक क्यों है तो फिर क्यों है? देन व्हाई इट इज हियर? तो काटा हमने, बैक कैसे जाए? हाउ टू गो बैक? काटा ऐसा बैक नहीं है क्या इसकी? यहाँ पर गए दिस वन देयर आ गया. You got the tea? Thank you, ma'am. We can keep it over here, no? कहाँ थे हम लोग यार? अरे एक बात बोलनी थी जो I need to go to home, right? I hope I said you. I got some work on 2nd, right? It has got shifted to 8. So I was going on 30. Probably I'll be going on 6th now. तो कल संडे है, शायद ऑफ रहेगा तुम लोगों का, है ना? संडे मंडे से क्लास होगी 5 तारीख तक तो होगी, फिर 6 को देखते हैं. You know, this tea is made up of a very special kind of a grass. I hope you might be knowing it is from your state. Lemon grass है कुछ क्या तुम लोगों का, है ना? Man, this is amazing. Now we are done with 2 topics now, very significant topics. One is Industrial Revolution and capitalism, and the second one was American Revolution. Second one is the American Revolution. Right. कहाँ से? वो जरूरत नहीं. Audible there, online students? Hopefully things going good there. Audible, ना? We're going to start hopefully. चलो. लिखा उसने. Yes sir, fine. चलो. Now tell me, have you went through the previous questions or not? Previous question देखा या नहीं देखा? हाँ, ये हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री का देखा? नहीं देखा? हाँ, मेंस का. There is nothing like prelims. Prelims coaching नहीं होता. But we do not know. Students used to come. Prelims के तरीके होते हैं. कोचिंग मेंस का होता है जब तुम लोग आ ही रहे हो, बोल ही रहे हो कि रुपए देंगे, तो लोग कहते हैं दो, मेरे को दो. मैंने देखा तुम्हारे स्टेट की हालत ये है कि आएगी नोटिफिकेशन तो बच्चे आएंगे ज्वाइन करने प्रीलिम्स के लिए. दैट इज नॉनसेंस. But well and fine, that is business also. From there we are getting money. So let the world be remain foolish, right? Now think of the complete story, which see, we are not going to the ancient history. See, the most beautiful part is this is world history class, right? In a world history class, we are specifically reading Europe history. What about rest of the world? Why we are not very much concerned about the rest of the world? ये एक सवाल है. Because the rest of the world, when the European society was getting history is been written by that of the Europeans, because they are the one who won the world war, because they were the one who were fighting the world war. हमें तो ले गया, चलो हम तो हमको उठाकर ले गया, चलो भाई तुम
गोरखा है ना, चलो चलो, Gorkhas were the one who defeated Hitler in Germany. Gorkhas defeated Hitler's Nazis in Germany. Can you believe that? But we were slaves. लेकिन हम slaves थे. उन्होंने चुन चुन कर लिया यहाँ से नागाओं को, ठीक है? They defeated them, but we were slaves. अहोम्स ने जिनको मारा इन्हीं को लेकर गए, लेकिन हम हमेशा स्लेव क्यों बन जाते हैं? वो स्लेव नहीं बनना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्या ना, वर्ल्ड हिस्ट्री. Yeah, we need to understand their thought process. By saying this, go to that phase of एक आदमी है जिनको हम हर चीज से बाहर रखेंगे, बाकी जिसको गाली करना है कर लो, चलेगा, रेस्ट इज ओके. क्लियर? देन आई सेड यू, जब कोई एक रिलीजन की सबसे बड़ी कमी यह है, रिलीजन की सबसे बड़ी कमी यह है, ये स्क्रिप्चर पर बेस्ड है, उसको स्क्रिप्चर से बाहर जा नहीं सकता. प्रोटेस्टेंट्स आ गए वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मली रिलीजन स्क्रिप्चर से बाहर जा नहीं पाएगा. क्लियर है? ओके फाइन. तो उसके सेट्स ऑफ आइडियल्स हो जाएंगे. व्हाट इज आइडियल्स? ना आइडिया, आइडिया, आइडिया से आइडियल्स हुआ है. डेमोक्रेसी इज एन आइडियोलॉजी, इज एन आइडियल. इट कैनॉट बी रिच्ड. जस्टिस इज एन आइडियल. इट कैनॉट, एब्सोल्यूट जस्टिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. एब्सोल्यूट इक्वालिटी इज नॉट अ पॉसिबिलिटी. वो कभी नहीं होगा, लेकिन हम हर बार एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. वी गॉट दैट स्कोप टू मूव अहेड. हेंस इट इज कॉल्ड एज आइडियल. समझ में आ रहा है? इट इज नॉट, ideals are not practically possible to achieve. Not practically possible to achieve. Religion is an ideology. Universal brotherhood, not practically possible to achieve. You're getting? But God will talk on that terms. The prophets will talk on that terms. Let the God or the prophets, let's talk on the terms. The normal human being like us are in no position to accept the diversity which is different from us. तुम्हारे यहाँ पर अब तुम लोग बड़े टॉलरेंट हो, कल यहाँ पर इंडियन ही सही, बांग्लादेश छोड़ो, इंडियन ही सही, बगल स्टेट का ही सही, कोई दूसरे लोग ज्यादा दिखेंगे, you will become intolerant. Yes or no? And that is normal, that is natural. But God is saying something called as different. Hence, the dark age will penetrate inside that of the religion. People will protest against it. That is called as Renaissance. All the stories which you have seen, their Renaissance was basically against that. ये बात को समझो. The next topic is right, French Revolution. कौन सा पढ़ाया? तो अच्छा, नोट्स नहीं दिया क्या? अरे यार, लिंकन का कहानी बोल दिया तुमको बस. हाँ, वही कहानी है सिविल वॉर. उसका नोट्स चाहिए तुम्हें? देखो, पता नहीं कहाँ गया नोट्स से. Now we have started the class of French Revolution. We'll give the notes of it. Okay, just wait. So let's begin with French. शुरू में बोलना चाहता था ना, before starting. Now the French Revolution is the most beautiful revolution you can think of. आज के दुनिया में जो सब कुछ, by doing French Revolution, we'll see the weakness of French society today and why they are weak. Clear? And why they were strong. उन्होंने इतनी जबरदस्त आइडियोलॉजी बना दी, ठीक है? All the goody things you know of this planet. The यूरोप का जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट थॉट प्रोसेस है ना, जो ये अमेरिकन और ब्रिटिश किसी से भी बहुत अच्छा हो, असली में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, जस्टिस, असली वाला जो शब्द है, जिसको फ्रॉम विच वी हैव टेकन टू आवर preamble is more or less from that of the French Revolution. मैं we'll go to that part. Okay, American Civil War leave 2 to 3 pages. Leave 2 pages, 3 pages. We'll give its notes today. आज ही दे देंगे तुमको. 4:30 to 5. We'll take the notes of it.
Of course, we'll not repeat the story of Lincoln. It was a beautiful story. Will not repeat the story. Fine. जरा गौर से समझो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हम अभी शुरू करने वाले हैं. फ्रेंच एट द एंड ऑफ द डे विल बिकम रिपब्लिक. जैसे जब तक कि असली में रिपब्लिक नहीं बनेगा तब तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन चलेगी. तो ऐसा नहीं है लाइक दैट ऑफ द अमेरिकन रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन, आया, लड़ाई किया, किंग को हटाया, रिपब्लिक आ गई या फिर डेमोक्रेसी आ गई. ऐसा नहीं है. ये वो लोग हैं जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट से सीखेंगे, दुनिया इनसे सीखेगी. समझ में आ रहा है? और भारत भी इनसे सीखेगा. इस बीच में एक आदमी आएगा, वन मैन विल कम इनटू पिक्चर, हिज नेम विल बी नेपोलियन. In the story, you will see the rise of monarchy once again. Now we are in France. France में जो लोग बैठे हैं, they are called as Protestants. Now that part is clear. Now you are getting why we are very much serious about the first class. Let this tea get over. The best lemongrass tea I have ever drunk. थोड़ा रुक जाओ. तो तुम्हारी मैडम है, वो बोली कि मैं आज जल्दी चली जाऊंगी. मैम तो फिर बना ही दो चाय को. ओके. दिस मच sacrificed for you. Listen, वे लोग प्रोटेस्टेंट्स थे. सारे पॉइंट्स याद रखो. वो लोग प्रोटेस्टेंट्स थे. उन्होंने जंग लड़के, they have fought the war against the Catholics and made French a successful Protestant state. ये फर्स्ट पॉइंट याद रहा. उससे पहले कुछ हुआ था, पूरा फर्स्ट क्लास याद. उससे पहले कुछ हुआ था. फ्यूडल लॉर्ड्स थे, फ्यूडलिज्म थी, एक किंगशिप का राइज हुआ था. याद आया? याद आया? तो मोनार्की है. उस किंगशिप के खिलाफ इंग्लैंड में इंग्लिश रिवॉल्यूशन हुआ होगा, जो कि बगल में है. हम इस बात को मानते हैं. लेकिन फ्रांस में कुछ नहीं हुआ. इंग्लैंड मेनलैंड कॉन्टिनेंट से बाहर है. तो डेमोक्रेसी असली वाला मोनार्की हटके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बैठी है इंग्लैंड में. यहां पर इंग्लैंड में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बैठी है. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, फ्यूडल सिस्टम आउट है. किंग का पावर भी आउट है. यहां पर सिर्फ प्रोटेस्टेंट बैठे हैं. पोप और चर्च का दबदबा नहीं रहा, लेकिन वो किंग बैठा है. किंग इज एन एब्सोल्यूट पावर. वहां पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहले क्यों नहीं आया इज अ क्वेश्चन. जब सारे कंडीशन फ्रांस का और यूके का मोर और लेस सेम था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहले हो जाना चाहिए था इंग्लिश रिवॉल्यूशन के साथ. बात को समझो. ब्रिटेन, फ्रांस के बगल में जर्मन स्पीकिंग. ओपन योर अटलास फर्स्ट. यूरोप मैप. ये सवाल है, ठीक है? वी आर फ्रेमिंग मेंस आंसर नाउ. यूरोप मैप फर्स्ट. Remember there is something called as index. उसमें लिखा होता है पेज नंबर. See France. Now tell me, see the position of France on Europe map or world map. Now tell me, what are the neighboring countries of France? Belgium, Germany और स्पेन. हाँ, स्पेन बोलना था ना. स्पेन. ओके. See, there are few powerful states near that, that of the France. दुश्मनी है. हो गया, सुनो. हो गया, जल्दी सुनो. तो उनकी क्या है ना, दुश्मनी है. ब्रिटेन का किसी के साथ बॉर्डर नहीं है. वो इंडिपेंडेंटली वो किंग के खिलाफ जा सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, अगर फ्रेंच के लोग किसी भी कारणवशतः, किसी भी वजह से अपने किंग के खिलाफ जाएंगे, द नेबरिंग कंट्रीज आर नॉट देयर फ्रेंड्स. दे माइट गो, इनिशियल टाइम में they might support the revolutionaries, they might oust the king, but after then they will occupy France and make the French their slaves. अगर समझ में आ रहा है समझ में? The question is this, जब प्रोटेस्टेंट्स ने प्रोटेस्ट किया कैथोलिक के खिलाफ, तो पूरे वेस्टर्न यूरोप में हुआ,
पूरे यूरोप में हुआ, वेस्टर्न यूरोप में प्रोटेस्टेंट्स ने सक्सेस लिया, यही ना। फिर उसके बाद किंग आ गया, मतलब किंग, आई होप दैट फ्यूडल लॉर्ड्स खत्म हुए, किंगहुड आई ना हर जगह। फिर कौन आए? प्रोटेस्टेंट्स आए ना। फिर ये वो हुआ, रेनेसांस हुआ, दिस दैट एंड यही हुआ ना। फिर इंग्लैंड में स्पेसिफिकली इंग्लिश रिवॉल्यूशन हुआ और किंगहुड की पोजीशन गई ना। वो चीज रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप में क्यों नहीं हुआ? दैट इज अ क्वेश्चन, राइट? नहीं हुआ क्योंकि रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप मेनलैंड कॉन्टिनेंट में थी। मेनलैंड कॉन्टिनेंट के अंदर होने की वजह से उनके नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज आपस में लड़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टुडेज इजराइल, फ्यू वीक्स बैक इजराइल अटैक करने से पहले ईरान में, इनसाइड ईरान there was a protest led by women against the orthodoxical priestly class domination in the society. पता है या नहीं? वुमेन कह रही हैं ईरान में हम बुर्का नहीं पहनेंगे। So there was burqa burning movement happening in Iran very recently. वे लोग जाकर जो वहां के प्रिस्टली क्लास हैं, देखो प्रिस्टली क्लास कर रहा हूं मैं, प्रिस्टली क्लास में वो लोग कैप पहनते हैं, वुमेन जाकर उनको कैप को मार देते थे पीछे से, and they used to run away. So there was a movement going on within Iran against the priestly class domination, and it was led by the women. Yes or no? अभी ईरान, इजराइल ने अटैक कर दिया, अब सारे मिल गए हैं अपने उसी ऑर्थोडॉक्स रेजिम को सपोर्ट में। नहीं आ रहा को समझ में? आ रहा को समझ में? पाकिस्तान वाज इन अ मिजरेबल स्टेट वेरी रिसेंटली। पहलगाम अटैक करने से पहले बलोचों ने अपना सर उठाया हुआ था। दे वर क्रिएटिंग enormous trouble. The Pathans were creating enormous trouble. Even the Sindhis have started asking for separation from Pakistan. They want that unifying factor. That unifying factor is a common enemy. Common enemy is India. They went for Pahalgam attack. India has no other option to satisfy its own people, has to go for Operation Sindoor. Pakistan has got united. I समझ में? Now there is no resistance from that of the Baloch army also. See, from few months, there is no attack by that of the Baloch army also. समझ में आ रहा है? डिसइंटीग्रेटिंग फैक्टर होने के बावजूद भी उसका कॉमन एनिमी भारत है। इजराइल में प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी, सॉरी, ईरान के अंदर प्रोटेस्ट होने के बावजूद भी उसका एक यूनिफाइंग फैक्टर इजराइल है। समझ में आ रहा है कुछ? गेटिंग? हेंस किंग के खिलाफ नफरत होने के बावजूद भी, सफरिंग होने के बावजूद भी फ्रेंच के सामने एक डर हमेशा स्पेन का रहा या फिर जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स का रहा। आ रहा है समझ में कुछ? And one of the major reasons of success of English evolution is they are outside the mainland continent. पूरा समझ गए क्या मतलब इसका? Despite of the similar circumstances in the island part of the mainland of the continent, English evolution was the revolution was only possible in England, not in the mainland continent. ये बस 2 ही पॉइंट है और 3-4 पॉइंट है। This much is clear? इसके नोट्स नहीं है, लिख लोगे चुपचाप अपने आप? लिख लोगे? बट ठीक है भाई, ओके, वेल एंड फाइन। लेकिन अब जरा गौर से समझना इस बात को। वी आर मेकिंग वेज फॉर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट क्लास ऑफ इंडिया। इंडिया में भी होगा ना सोशियो रिलीजियस, अरे रिफॉर्म मूवमेंट कहां से आएगी? अब सुनो जरा गौर से सुनो। प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हो गया, ये सारी सोच तो है ना, वो लिबरल थॉट प्रोसेसेस ऑफ दैट ऑफ द रेनेसांस, वो तो आ ही चुका है ना उनके पास। तो जो आम आदमी है, फ्रांस इज अ कॉलोनाइजिंग पावर, is gradually getting industrialized and has got a good share of portion in Africa or has entered Africa and has eyes on Asia, was already in North America. आ रहा है कुछ याद? Already in, अरे नहीं, अरे ब्रिटेन और फ्रांस were fighting. तो उसके पास ढेर सारी कॉलोनी थी। सेंट डिएगो जो वर्ल्ड का रिचेस्ट कॉलोनी फ्रेंच के पास ही था, तो उनके पास भले ही, अब पॉइंट को समझो, फ्रांस के पास भले ही घर के अंदर पैसा ना हो,
they were looting out other colonies and bringing the money to their own place, and hence were rich. Wait, but who was rich? Wait. There was the rise of merchant class. The merchant class were private people. The private people are going to the other colonies, looting out the money and coming to their own home state. They are paying larger amount of taxes to the king. King is not doing anything in return. Hence, the merchant class were not happy with that of the king. Easy. Whooping majority of the French population, notes दूंगा मैं, I'll give the notes. Wait. Whooping majority of the population of the France, that is 95% of the population, were commoners, common men. Out of that 95%, उसका 80% जो था वो फार्मर था. A handful of people, मैंने कहा था ना, रिच क्लास हमेशा कम होगा, मर्चेंट क्लास हमेशा कम होगा, है ना? There are few Ambanis, Adanis and all, Tatas, this, that and all. कुछ ही लोग थे जो कि मर्चेंट क्लास थे. इन्हीं लोगों ने स्टेट नहीं, एजुकेशन पर इन्वेस्ट किया था. साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड, रैशनलिज्म, दिस, दैट एंड ऑल, उस पर उन्होंने काम किया था. इसी वजह से फ्रेंच के सोसाइटी में रैशनलिस्टिक थॉट प्रोसेस वाले लोग थे जो गॉड को क्वेश्चन करेंगे. ये पॉइंट याद रहा. किंग अपने आप को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, तो जब गॉड के रैशनलिस्टिक थॉट प्रोसेस पर सवाल उठा, तब किंग के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठेगा ना. एक पॉइंट याद रह रहा है. आई विल रिपीट दिस वंस अगेन. जब वो एजुकेटेड मास, एजुकेशन के लिए पैसा कहां से आया, जरा गौर से देखो. पैसा स्टेट नहीं दे रहा है, यहाँ पैसा मर्चेंट क्लास लगा रहा है. तो डॉक्टर निकलेगा ना, इंजीनियर निकलेगा, निकल चुका है. डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर्स, ये जो सारे निकले हैं, वो कौन से एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है? वो कैपिटलिस्ट एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा है. तो ये जो सोकल मिडिल क्लास निकलेगी, वो भी कैपिटलिस्ट थॉट प्रोसेस का रहेगा. कैपिटलिस्ट थॉट प्रोसेस की बेसिस ह्यूमनिज्म है. ह्यूमनिज्म पूरा क्लास याद करो. ह्यूमनिज्म, इनका डेफिनेशन नैरो फॉर्म ऑफ ह्यूमनिज्म था. उसमें सिर्फ अगर ब्रिटिश की बात कर सकता है, तो फ्रेंच ह्यूमनिज्म में सिर्फ फ्रेंच की बात होगी. वो दूसरे लोगों को हेट करेंगे, यस, और वो अपने राइट्स की बात करेंगे. वो सवाल उठाया जाएगा एंशियंट रेजिम पर. बर्बन, आई विल रिपीट एवरीथिंग. बर्बन डायनेस्टी थी, डायनेस्टी जो थी वो थी बर्बन डायनेस्टी. तो उस पर सवाल उठेगा, रैशनलिस्टिक सवाल उठेगा. किंग का एक और कहानी शुरू. आई विल रिपीट एवरीथिंग. सिंपली मेक द बेस. किंग का एग्जिस्टेंस डिवाइन राइट है, क्योंकि प्रीस्टली क्लास ने कहा है कि डिवाइन राइट है. किंग इज द शैडो ऑफ गॉड. किसने स्टैंप लगाया? प्रीस्टली क्लास ने स्टैंप लगाया. प्रीस्टली क्लास कौन है ना? चर्च है. कैथोलिक चर्च तो खत्म हो चुकी है. तो ये मैंने क्या कहा था, प्रोटेस्टेंट्स अभी नया चेंज हुए हैं. ये कैथोलिक जैसा बिहेव कर रहा है, याद आया? तो ये प्यूरिटन ने उनके खिलाफ गए थे, याद आया? कहानी सुनना पड़ेगा क्लास में. तो प्यूरिटन उनके खिलाफ गए थे, याद आया? फ्रांस में प्रोटेस्टेंट्स हैं, तो ये कैथोलिक जैसा टिल्ट करके रखे हैं. उनसे बहुत लिबरल है, लेकिन टिल्ट तो है ना कैथोलिक की तरह. तो ये प्रोटेस्टेंट चर्च है जो कि अभी भी मान रहा है कि किंग के पास डिवाइन राइट है. वो पूरी तरीके से प्रोटेस्टेंट हुआ नहीं है, लेकिन वहां प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन वहां पर हुआ है. जो इंटेलेक्चुअल क्लास है वो तो सवाल पूछेगा. उसने सवाल पूछा. एंशिएंट टाइम से प्रीस्टली क्लास, वो जो एंशिएंट टाइम से प्रीस्टली क्लास, ये जो सिस्टम है जिसका हेड किंग है, उसका एक हिस्सा प्रीस्टली क्लास भी तो है. दूसरा हिस्सा नोबल क्लास तो है, मिडिल क्लास नहीं, नोबल क्लास तो है. इन दोनों का हेड किंग तो है. ये पूरा सिस्टम डिवाइन है.
उस पर स्टैंप लगा रहा है प्रिस्टली क्लास, जिसका बेस है चर्च। इसी चर्च के खिलाफ मारामारी करके ये प्रोटेस्टेंट बने हैं। तुमको लगता है कि ये चर्च अभी छूटेगा? ये भी लपेटे में आएगा। आया समझ में? अगर तुम इसको हटाना चाहते हो इसके पावर से, तो तुमको पहले इसे हटाना पड़ेगा। ये इसके आग में झुकेगा अभी। जस्ट वेट एंड वॉच। अब तुमको स्टोरी समझ में आ रहा है? I'll just fill in the blanks, just wait and watch। आया समझ में? इन दोनों पर टैक्स नहीं लगेगा। I'll come to the full story। टैक्स नहीं लगेगा क्यों? क्योंकि ये लोग डिवाइन है। इनके पास 40% ऑफ लैंड है, 5% ऑफ द पॉपुलेशन है, 40% ऑफ द लैंड है। 95% ऑफ द पॉपुलेशन के ऊपर जो कि कॉमनर्स थी, जिसके 80% पीजेंट्स थे, वही सब कुछ सारे रुपए वही दे रहे हैं। रिएक्शन तो होगा ना जी। रिवोल्यूशनरी एटमॉस्फेयर में बैठी है अभी यूरोप। अंदर गया? यही वो फ्रांस है जिसने अभी मदद किया है अमेरिकन को अमेरिकन रिवॉल्यूशन में। सारा पैसा खर्च करके दिवालिया होकर बैठा है कि बिकॉज ब्रिटेन एंड फ्रांस वर टू मेजर पास, इट वाज नॉट एन इजी गेम टू नंबर 1 एंड 2 फाइट अगेंस्ट ईच अदर। यहां तक कि यूरोप भी बर्बाद, सॉरी ब्रिटेन भी बर्बाद हो चुका है, फ्रांस भी बर्बाद हो चुका है। ब्रिटेन हार गया, बर्बाद है। फ्रांस जीत कर बर्बाद है फाइनेंशियली। डन। ब्रिटेन की सबसे अच्छी चीज है, जब वो बर्बाद हो जाता है, वो अपनी कॉलोनी से लूटमार करना चालू कर देता है। उसका स्टेट फोर्स सारे मिलकर लूटते हैं। उनका किंग, क्योंकि उनका किंग तो है नहीं, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में मर्चेंट क्लास बैठा है। स्टेट फोर्स प्राइवेट बॉडीज को भेज भेज कर लूट मार कर रुपए इंग्लैंड में ले आए। वो फिर से अपने आप को स्टेबलाइज कर दिया। अंदर गया? फ्रांस अमेरिकन इंडिपेंडेंस के बाद जो उस वॉर में था, इस फ्रांस का जो ताकत था, पैसा वाली ताकत, उसकी सिर्फ प्राइवेट सेक्टर थी। इंडिविजुअल लोग जाकर जो लूटमार करके लाते थे। जो स्टेट था वो इनएफिशिएंट था, तो वो इकोनॉमिकली उभर नहीं पाया, लोगों को खाना नहीं मिला। इन शॉर्ट, तो लोग विद्रोह कर दिए। उसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहते हैं। वन ऑफ द बेसिक cause of French Revolution is participation in American Revolution। ओवरऑल स्टोरी याद रहा? हाँ, अभी हम शुरू करेंगे। हो गया, हमने बेस बना दिया। अब सुनो, लेट्स स्टार्ट द क्लास। यूरोप में फ्रांस की बात नहीं कर रहा मैं, यूरोप में अब देयर आर टू, इंग्लैंड की बात नहीं कर रहा मैं, मेनलैंड यूरोप की बात कर रहा हूं, बेसिकली वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहा हूं मैं। चुपचाप सुनो और याद रखो। यूरोप में अब दो किस्म के सोच थे। देयर आर टू थॉट प्रोसेसेस। दिस इज द फास्ट, इसको हम मानेंगे आम आदमी का थॉट प्रोसेस, जो कि लेफ्ट में है, और हम राइट में हमेशा राइट हैंड दिखाऊंगा, तुम जान लेना ये किंग वाला। कौन सा वाला थॉट प्रोसेस है? ये वाला। इसमें कौन कौन सा है ना? प्रिस्टली क्लास, ये एक डिवाइन कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि प्रिस्टली क्लास है, जिसमें कि नाइट्स है, और द नोबल क्लास है। इनको हेड कर रहा है किंग। ये एंशियन रेजिम है। फ्रांस में जो डायनेस्टी बैठा है वो बॉर्बन डायनेस्टी है, वो बिस्कुट वाला बॉर्बन डायनेस्टी है फ्रांस में। ये सिमिलर कंडीशन रेस्ट ऑफ द यूरोप में भी है। जर्मनी यूनिफिकेशन में मैं ऐसे ऐसे करूंगा, तुम चुपचाप समझ लेना। और वर्ल्ड में दो ही चीजें हैं, यूरोप में दो चीजें हैं भाई, सुनो आराम से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज गोइंग टू बिट क्लमजी। इसमें आम आदमी वाले लोग हैं, इसमें सोच है, ये प्रोडक्ट है रेनेसांस का। इसमें लोग बैठे हैं प्रोटेस्टेंट्स। ये सवाल पूछेगा, इन्होंने इंग्लिश रिवॉल्यूशन देखा है, इन्होंने अभी खुद ब खुद अमेरिकन रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करके आए हैं। वो सारे लिबरल थॉट प्रोसेस इंग्लिश रिवॉल्यूशन के एंड अमेरिकन रिवॉल्यूशन के और रेनेसांस के
यूरोप में बॉइलिंग है, यहां पर एक कॉमन मैन मासेस है जो कि मोर देन 99% है, वो अपना राइट्स मांग रहा है। यहां पर ये वाली ग्रुप है, यहां पर ये वाली ग्रुप है जो कि कंजर्वेटिव है, ऑर्थोडॉक्स है, रिच क्लास है, लैंडेड स्टेट का मालिक है, स्टेटस कोइस्ट है, वो अपना स्टेटस छोड़ना नहीं चाहता, ये नया स्टेटस पाना चाहता है, ये छोड़ना नहीं चाहता। आ रहा समझ में कुछ? इसके पास पावर है, इसके पास आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये इसको सप्रेस कर रहा है, ये दोनों लॉगर हेड्स में है। लेकिन ये आम आदमी है, इसके पास आर्म्ड फोर्सेस नहीं है, इसके पास चाहत हो सकती है, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन ये ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे कि इंडिया में आम आदमी, इंडिया में क्या, दुनिया में हर जगह कहीं भी आम आदमी ऑर्गेनाइज नहीं है। एक स्मॉल यूनाइटेड माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी आकर मैसिव मेजॉरिटी को मार सकती है, वो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी ये क्लास है। आया समझ में कुछ? लेस देन 5% लोग हैं ये। तो ये दोनों लॉगर हेड्स में है। तो इनकी, तो जो मैं लेफ्ट हैंड दिखा रहा हूं, इनकी थॉट प्रोसेस रेडिकल है, चेंजिंग है, और इनमें से कई सारे ग्रुप्स हैं जो कि एक्स्ट्रा रेडिकल होंगे, जिनको अभी चेंजेस चाहिए होगा। इनमें से कई सारे ग्रुप हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाना चाहेंगे, कई सारे ग्रुप हैं जो कि धीरे धीरे करेंगे। इस ग्रुप में ढेर सारे ग्रुप्स हैं, तो ये होमोजेनाइज ग्रुप नहीं है, ये इनकी वीकनेस होगी। ये लोग माइक्रोस्कोपिक हैं, ये लोग लड़ सकते हैं, इनके पास पावर है, ये सप्रेस कर देगा। जब भी ये सर उठाने की कोशिश करेगा, ये बात को समझो, दूसरे स्टेट से लड़ लेगा, ये दूसरे स्टेट से लड़ लेगा, दूसरे स्टेट से लड़ लेगा तो उस तरफ से अटैक होगी, नेशनलिज्म की वजह से ये इनका साथ देंगे, तो ये फिर से यूनिफाई हो जाएगा। वॉर के बाद ये उसको फिर से सप्रेस करेगा। दुनिया भर की हालत आज भी वही है। इतना समझ में आया? आसान सा चीज है। सो नाउ लिसन प्रॉपर्ली। फ्यूडल सिस्टम में याद है कुछ 3 सेक्शन हुआ करते थे, क्लर्जी, नाइट्स, कॉमनर्स। फिर आया कौन सी चीज? रेनेजेंस आया, एक नया क्लास निकला, मिडिल क्लास, जो कि मर्चेंट थी। एंशियन रेजिम से फ्यूडल पे जाओ, फिर से फ्यूडल पे जाओ। एंशियन रेजिम में तो फिर 3 क्लास होंगे, क्लर्जी, नोबिलिटी, कॉमनर्स। चीजें रिपीट हो रही है बस, दैट्स इट। हेंस उनको हम बोलेंगे क्या? स्टेट्स। स्टेट 1, 2 and 3. 1 होगा clergy of the priestly class. I do not need to explain why they will be given the state 1 position, because they, I hope you are getting, I don't need to explain. वो गॉड के साथ डील कर रहा है। प्रिस्टली क्लास हमेशा ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी में टॉप पोजीशन में ही रहता है। उसके बाद आएगा कौन? क्षत्रिय और द नोबल क्लास। इसलिए स्टेट दिया गया, नहीं पूछेगा। डन। The first 2 classes easy, the first 2 classes मतलब ये दोनों, इनके पास क्या था ना, ढेर सारे लैंड्स है, and all those things which I have said you now. बेसिक कंडीशन आ गया समझ में? नॉर्मल है। During 18th century, right faster. During 18th century in Europe, अरे वो लाइट ऑन कर देना। During 18th century in Europe, 2 mutually exclusive forces of idea, 2 mutually exclusive forces of ideas tussled to assert one over the other. One over the other. One of these forces, next, one of these forces perpetuated
the interest of, understand and write down, interest of absolute monarchy and feudal privileges. Absolute monarchy and feudal privileges, and was reactionary and status quoist. And status quoist in its tendency. Status quoist in its tendency. Now just wait and tell me, what do you mean by reactionary? मतलब जल्दी बताओ, मतलब what exactly you mean by this could be a possible means question. Reactionary का मतलब क्या रिएक्शनरी? 3 पॉइंट बताओ. ये वे लोग स्टेटस कोइस्ट थे, मतलब बरकरार, मतलब ये 1 पॉइंट होगा. मतलब और बताओ, स्टेटस कोइस्ट वो क्यों रहना चाहता है? स्टेटस कोइस्ट पावर. फिर बताओ, तुम बताओ. Then what? पॉलिसी को हाथ में रखा. फिर yes, mask, yes please. Are you getting how to write main answer? आया कुछ समझ में? वहां पर बैठकर तुमने ये सारी कहानियां मैंने क्यों बोला? इसीलिए ताकि यू कैन थिंक समथिंग आउट ऑफ इट. अब ये मान लो सवाल आया तो मैं एक हेडिंग दूंगा, रिएक्शनरी एंड स्टेटस क्वेस्ट. मान लो यही सवाल आ गया, लिख लिया एनालिसिस, मैं एक हेडिंग उसमें दूंगा, स्टेटस क्वेस्ट एंड रिएक्शनरी. उसके 4 पॉइंट में अपने मन से सोचकर लिखूंगा, कहीं आंसर है नहीं, कोई बुक. और एक हेडिंग क्या दूंगा, perpetuated interest, one of these forces perpetuated the interest of absolute monarchy and feudal privileges. दूसरा मैं ये दूंगा हेडिंग, पहला ये दूंगा, दूसरा वो दूंगा. फिर उससे सोच कर जो सारी कहानियां मैंने कहा, आउट ऑफ दैट आई विल थिंक समथिंग वैलिड. समझ में आ रहा है? थिंक समथिंग वैलिड and just write it and the bloody answer is correct. Do not get shocked कि बड़ा टफ आया था. कोई टफ अप नहीं आया था. You know what is Renaissance? प्रोटेस्टेंट्स लिखना नहीं है. प्रोटेस्टेंट तुम्हारा कॉपी अगर कोई चेक कर रहा होगा ना, कैथोलिक निकल गया बेटा. अगर कोई गेटिंग, डू नॉट राइट दिस टर्म्स. वो कैथोलिक है, वो प्यूरिटन है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है. लिखना नहीं है ये सब. वो क्लास में समझाने के लिए है, ताकि तुम लोग उसे समझ जाओ. और दिल्ली में सारे बैठे हैं, सो विल नॉट टेक दैट रिस्क. Getting? Now write this and tell me what does that mean. Other was associated with, next. Other was associated with aspiration of common man. Aspiration of common man, and was radical and revolutionary in nature. Radical and revolutionary in nature. अब जरा रुक जाओ. लिखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो देगा क्वेश्चन में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों स्टेटमेंट देगा, फिर फुल स्टॉप देगा, फिर एनालिसिस लिखेगा. अभी तुम लोग लिख नहीं पाओगे, डोंट वरी, लेकिन जितना भी समझे हो आउट ऑफ योर ब्लैंक हेड, कैन यू राइट समथिंग वैलिड? अब मैं तुमको बोलूंगा, सिर्फ नाम दूंगा, मेरा भी आएगा, टेनिस कोथ होगा, फॉलो बैस्टेल होगा, मैं सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करूंगा, दैट्स इट.
क्या तुम पिछले 4-5 क्लासेस में जो कहा गया, कैन टू राइट समथिंग अबाउट द एस्पिरेशन ऑफ कॉमन मैन? 4 valid points. Can you write something on that? That aspiration will be radical and revolutionary. ठीक है, वो जो बात को समझो, आंसर कैसे लिखते हैं? एस्पिरेशन ऑफ कॉमन मैन जो है, एक तो मैंने लिख दिया, एक हेडिंग दे दिया एस्पिरेशन ऑफ कॉमन मैन, 4 पॉइंट मैंने सोच के ऐसे लिखा और वो चारों सही है। अब तुम वो एस्पिरेशन ऑफ कॉमन मैन किस तरीके से रेडिकल एंड रिवोल्यूशनरी होगा, क्या वो तुम लिख सकते हो? ये जो सोच है इसके खिलाफ है ना भाई, वो तो बोलेगा ना कि ये हटेगा, वही तो लिखना है। वो क्यों हटेगा? क्योंकि ये किससे प्रभावित है? इज गॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम दैट ऑफ द अमेरिकन रिवोल्यूशन एंड इंग्लिश रिवोल्यूशन। तो ये भी तो बोलेगा ना नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। इसके भी तो इकोनॉमिस्ट आएंगे ना जो कि बोलेगा अरे भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, वो सारे चीजें जो तुमने पढ़ी है, बोलेगा मैं भी टैक्स नहीं दूंगा, हाँ या नहीं? मुझे भी राइट चाहिए, और तुम डिवाइन क्यों हो, इसे तुम्हें हटना पड़ेगा, मुझे भी डेमोक्रेसी चाहिए। हो गया 4 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम हॉल में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना, यही करना रहता है मेंस में। अब मैं तुमको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स बोलूंगा स्टोरी दे देकर, ठीक है? डन। सर ये क्या होता है, वो जो 10 मार्क्स के लिए जिसके पास ये क्या होता है, वो डिग्री का इंट्रो में कितना मार्क्स पर, क्वेश्चंस पर है, वो करेंगे उसको, रुको अभी। आई एम सिंपली सेइंग हाउ टू स्टार्ट आउट द राइटिंग्स। लिखो फर्स्ट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैनिफेस्टेड द विक्ट्री ऑफ लेटर। ये फिर से सवाल शुरू हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैनिफेस्टेड द विक्ट्री ऑफ letter, LATTER. Letter means common man, and propagated the ideas of equality, liberty, and fraternity. Fraternity का मतलब brotherhood, which became cornerstone of modern day politics and institution. Modern day politics and institution. Easy. Next, social condition in the 18th century France. Social condition in the 18th century France. अच्छा, डायनेस्टी का नाम क्या था? रेजीम का नाम क्या था? एंशिएंट रेजीम। डायनेस्टी का नाम था बर्बन डायनेस्टी। ये एंशिएंट रेजीम हर जगह पढ़ोगे तुम। इसका बेस क्या है जो मैंने तुमको करके दिखाया? ये प्रिस्टली क्लास, ये नोबल क्लास, ये किंग। लिख लो, द रेजिम बिफोर फ्रेंच रिवॉल्यूशन was known as ancien regime, not ancient, ancien regime or old regime. The king enjoyed absolute power. France was strong and powerful state. France was strong and powerful state. She had seized seize karna. She had seized vast territories in North America. Vast territories in North America.
Islands in West Indies. Islands in West Indies. However, the French monarchy was facing crisis. Which led to its destruction. Right, faster. Which led to its French monarchy was facing crisis, which led to its destruction. French society was divided into classes. French society was divided into classes or estates. Estate 1, estate first, second and third. नीचे नीचे करके लिखो. Estate 1 क्या है ना? क्लर्जी क्लास और प्रिस्ली क्लास. So 2 क्या है ना? नाइट्स. Estate 3 हम लोग कॉमनर्स. क्लर्जी, नाइट्स, कॉमनर्स. अरे नोबल क्लास, नोबिलिटी लिख लो, बेटर है. ये नोबल क्लास क्या है भाई? व्हाट इज नोबल क्लास? हट, क्या कह रहे हो? मर्चेंट क्लास यहाँ रहेगा, गरीब में, कॉमनर्स में. अरे किंग होगा, किंग के बच्चे बच्चे होंगे, मामा का, बुआ का, फूफा का, पापा का, चाचा का, भाई बहन होंगे, है ना? वही जो किंग वाली फैमिली है. समझ में आ रहा है? रॉयल क्लास जो है या फिर कोई बड़ा बड़ा लोग है, वो नोबल क्लास है. एवरीवन कैन नॉट बिकम अ किंग, राइट? बट किंग हैज एन एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम. मोर और लेस वही लोग रहते हैं उस पर. अब किंग के साथ उनका क्या है ना? रिलेशनशिप है. जब किंग ही डिवाइन है तो वो लोग छोटे मोटे डिवाइन तो होंगे. तो ये छोटा मोटा डिवाइन लोग हैं. समझ में आ रहा है? ये तो है ही प्रिस्ली क्लास. अगर तुम किंग का पावर कम करना चाहोगे तो ये दोनों मरेंगे. अगर तुम इन दोनों का पावर कम करना चाहोगे तो ये मरेगा. इन तीनों का पावर कम करने के लिए सबसे बड़ा सवाल चीज है ना, रीजन यूज करना ना, मतलब इन पे सवाल उठाना. इन पे सवाल क्यों उठेगा? बिकॉज द क्वेश्चनिंग टर्म्स राउंड्स आर वाज ऑलरेडी देयर इन. ये सारे आंसर्स हैं. द क्वेश्चनिंग राउंड वाज ऑलरेडी देयर इन यूरोप in the form of Renaissance, English Revolution and American Revolution. Clear? Good. The first two classes were exempted from. The first two classes were exempted from all taxes. They controlled most of administrative posts in army. They controlled most of administrative posts in army. They also control 40% of the land. They also control 40% of the land. Their income primarily comes from large land holdings. They consider it beneath their dignity to trade beneath their dignity to trade or to engage in manufacture or do any work.
और आज हम जल्दी छोड़ देंगे. द क्लास विल बी शॉर्ट. आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल. आई हैव नॉट स्लेप्ट लास्ट नाइट, सो नॉट फीलिंग इजी. और डू एनी वर्क. अभी कोई काम नहीं करेंगे वो. और डू एनी वर्क. लाइफ वॉज ऑफ extravagance and luxury. VAGANC. Extravagance and luxury. अब सुनो, बोला था ना फिल इन द ब्लैंक्स होगा. क्लर्जी क्लास जो है, क्लर्जी द प्रीस्टली क्लास, वो कहां पर बैठेगी? चर्च में. जब चर्च चलाने के लिए यू नीड सम मनी, दैट टैक्स इज कॉल्ड एज तिथ. रुको रुको, नो नीड टू राइट. तो वो क्लर्जी क्लास 10% टैक्स एक्स्ट्रा लेती थी किंग लेने के बाद. वो 10% टैक्स लेगा. जो नोबल क्लास है, चर्च इज वन ऑफ द मेजर फ्यूडल लॉर्ड. उसके पास ढेर सारे लैंड है. वो मेन बात है, वो आज भी है. मस्त बात है, वो आज इंडिया में भी है. ये मॉस्क हो गया, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, तुम देखना इन लोगों के पास बहुत सारे लैंड हैं. ये लैंड आता कहां से? इन सच ए हाईली पॉपुलेटेड कंट्री, इनके पास इतने बड़े बड़े लैंड कैसे? चलो टेम्पल के पास है, मठ के पास है, क्योंकि जब किंग हुआ करता था ना, मान लो यहाँ पर एक बड़ा सा टेम्पल है, उसके कई सारे खर्चे हैं, टेम्पल में बहुत सारा खर्चा, तो उसको किंग ने उस टाइम पे ढेर सारे लैंड्स दे कर रखा था. उससे जो रेवेन्यू आएगा उससे टेम्पल चलेगा. बाद में करप्शन आ गया, ये हो गया, वो हो गया, चलो वो सब हुआ. मॉस्क के पास इतना लैंड है क्योंकि मुस्लिम रूल था, उसको किंग ने दिया था. चर्च के पास आज इंडिया में इतना लैंड कैसे? पैसा कहां से आता है वो? अरे कोई पीपल फंडिंग होती है. नहीं नहीं, इनको फंडिंग नहीं होता है. ये बेचारे गरीब लोग, इनको कौन फंडिंग देगा? अरे इनको लोग फंडिंग, वो इंडिया में होता है ना. मैं मंदिर गया, रुपए दे दिया, 10, 15, 20, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख करोड़, जो मैंने दिया. इंडिया में कैसे होता है अभी? नो, व्हाट इज द टोटल worth of Waqf board? What is the revenue of it? Property. कहाँ से आया? ये है सिलेबस में ना. आई होप दैट पार्टीशन कैसे, कहाँ से आया, ये होता कैसे? उसका मेन ये क्या होता है, बस एक जो एक्ट पास किया था, ग्रामीण लोग चाहेंगे कि यार ये मेरा ऑफ फाइनेंशियल वो करेंगे उसको करेंगे, ठीक है, करेंगे उसको. फिर हम देखेंगे इनके पास इतना लैंड आता कहाँ से. मतलब वो आएगा बोलेगा कि ये जो घर है, सुनो, once a walk always a walk. कहाँ हम, we should not go over there. once a walk always a walk. 1000 साल पहले कोई एक किंग था, उसने कहा था ये पहाड़, अरुणाचल के ये पहाड़, ये सब है, ये मैंने दे दिया. उसने लिख लिया. 1000 साल बाद, 1000 साल से यहाँ पर ट्राइब तो है ही, है ना. किसी ने ऐसा बोल दिया था. अब आकर कोई क्लेम करेगा ना, 1000 साल के बाद भी अगर कोई एक प्रूफ दिखा देगा तो ये वो आपका हो गया. अब तुम जाकर कोर्ट जाते रहो, ये करते रहो, वो फलाना करते रहो. ये सबके साथ है. वो टेम्पल के साथ भी है, वो इनके साथ भी, वो सबके साथ है. टेम्पल गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है तो ये रुपए इनसे वो ले लेता है, वो बाकी आते नहीं. समझ में आ रहा है? बाकी आते नहीं. चर्च का क्या है कि वो गए एक जगह पर रहे, ट्राइब्स वाली जगह पर रहे. वो लोग कहाँ रहते हैं ना, खुले खुले जगह में जहां पर सेटलमेंट है नहीं. फिर बोल देंगे ये सारा जंगल मेरा है. हाँ, फिर उसको ब्राइब करके वो जब वो उसका पट्टा, वो पेपर सब कुछ बना देंगे, तो लीगली ऑथराइज हो गए वो लोग.
अंदर का ट्राइब कहाँ जाएगा? फिर वो बोलेंगे या तो तुम बाहर निकलो। सी मनी इज अ वेरी पावरफुल गेम, यू जस्ट कैनॉट गो अगेंस्ट इट। अब पैसा दे दोगे तुम अथॉरिटी को, इसको उसको, तो वो जगह किसका हो गया? उसका हो गया। लेकिन उस जगह का एंजॉयमेंट कौन करेगा? चर्च चर्च थोड़ी करेगा, चर्च के अंदर वाले जो लोग हैं ना, दैट सो कॉल्ड प्रीस्टली क्लास, वो करेगा। इसको कहते हैं डार्क एज। इसीलिए इनके इनके पास इतने ढेर सारे क्या है ना, लैंड्स हैं। चर्च का तो प्योर बिजनेस है। देखो भाई, बिजनेस तो सबका है, इट्स नॉट सिर्फ चर्च का है। नहीं, वो लोग का जो जाता है वो लोग ये क्या ट्राइबल एरिया में जाता है, भाई वो तो बिजनेस है। तो वहाँ से जमीन को वो सस्ता में खरीदते हैं, सस्ता में खरीदते हैं और वो बहुत दूर जगह में खरीदते हैं। तो बाद में आफ्टर 25 years जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, वे लोग जंगल के अंदर जाकर इंडस्ट्री बना कैसे ले रहे हैं लीगली? कैसे बना रहे हैं? वो लोग क्या करते हैं, इन्हीं लोग को पकड़ते हैं, मिशनरीज वालों को, वो अंदर भेजते हैं। वो अंदर जाकर अच्छे अच्छे काम करके बहला फुसला कर सबको अपना बना लेते हैं। उनसे जमीन ले लेते हैं, इनको लाके बेच देते हैं, ये अपना इंडस्ट्री बना देते हैं लीगली, फिर उनको हटा देते हैं। फिर यही चर्च वाले जाकर उनका बन जाएंगे क्या? मसीहा। वो लोग देखा हमने तुमको सब कुछ किया, अब तुम कन्वर्ट हो जाओ। ये होगा, दिस इज मनी। समझ में आ रहा है कुछ? सो दिस इज द क्लर्जी सिस्टम। क्लर्जी सिस्टम तब किंग के साथ था। आज के टाइम में प्रिस्टली जो क्लास है, एनी वो किसके साथ बैठी है? वो भी आज भी किंग के साथ बैठी है। जरा गौर से देखो, डेमोक्रेसी में वो पॉलिटिकल लीडर के साथ बैठी है। एक होता है शाही इमाम दिल्ली का आई रिमेम्बर 2014 2010 या फिर कांग्रेस के टाइम से पहले की बात है, पहले के टाइम की बात है। शाही इमाम दिल्ली में जहां बोलेगा सारे मुस्लिम जाकर उसे वोट देंगे। कांग्रेस कॉन्स्टेंटली जीतती थी दिल्ली में। उसी चीज को टर्न आउट कर दिया केजरीवाल ने, तो केजरीवाल जीतने लगा। तो शाही इमाम की पावर बनी रही ना, वो आज भी पावरफुल है ना। शाही इमाम दिल्ली का बोलेगा कि अभी ईद, मतलब चांद दिखा तो ईद शुरू होगा। अब तुमको चांद दिखे ना दिखे, कोई उसे फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली के इमाम ने कह दिया तो उड़ीसा में भी होगा, केरला में भी होगा। ये पहले भी किंगली क्लास के पास बैठता था, कहां गया वो आज भी किंगली क्लास के पास बैठा है। इसके पास कौन सी पावर है ना, उसको गॉड कहते हैं। समझे? उसको गॉड कहते हैं। तो ये पावरफुल तो रहेंगे। और दूसरा का सुनो, दूसरा नोबल क्लास के पास ढेर सारा लैंड है। वो तो खुद छोटा मोटा गॉड है ना, है? तो क्या वो टैक्स देगा? वो टैली टैक्स से लिबरेट था, वो लैंड टैक्स नहीं देगा। ये टैली टैक्स नहीं देगा, वो टैक्स लेगा। तो एक्स्ट्रा टैक्स यहाँ से कौन देगा ना? कॉमन मैन देगा। ये जो टैली टैक्स का बर्डन फिर से कॉमन मैन पर आएगा, तो कॉमन मैन की कमर टूट ही जाएगी। वो बोलेगा यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। जो पीजन क्लास नहीं है उसकी भी बात कर रहा हूँ मैं, जो मर्चेंट क्लास है, ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहा है, पैसा है, बिजनेस है, वो चर्च के कई सारे चर्च के पास से बहुत पैसा था। इन जो नया मर्चेंट क्लास निकला है, दे वर मच मोर रिचर एंड पावरफुल देन द priestly class of the church and that of the noble class. So they were not willing to stay under this people. They want that social sanctity. उनको भी चाहिए था। वो सब्जेक्ट कंडीशन यही लोग फुलफिल करेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे फिलोसोफर हो। मॉडर्न डेज में हम लोग घुस चुके हैं ना, तो इस टाइप के सारे लोग आ चुके हैं जिनके पास पैसा है। वो सारे कंडीशन है जिसके वजह से इंग्लिश रिवोल्यूशन हुआ था। फ्रेंच के सोसाइटी में objective condition hai because there was absolute suffering from all the sides. Now this new rising middle class or the merchant class or the new commoners which you see, they might be less in population, they were able to influence the society ki hamare sath exploitation ho raha hai. समझ में आ रहा है? But the condition of France was different from that of the England. तो क्या different था उसको अब हम थोड़ा देखेंगे। Clear? We'll take class for 1 more hour. आज 5 बजे तक क्लास नहीं हो पाएगा। आई एम नॉट फीलिंग गुड। ठीक है? और कल छुट्टी है। देखो थर्ड स्टेट, सॉरी, क्लर्जी had the power to levy 10% tax
The clergy had the power to levy 10% tax, known as tithe, TITH. So what will be 10% tax? Known as tithe, TITH. Meant to run, that is meant to run day-to-day affair of the church. Day-to-day affair of the church. Next, nobles. Nobles formed FRMED. Nobles formed an honored class were exempt from tally. Were exempt from tally or property tax. तो सारे टैक्स कॉमनर्स देगा, इजी. द थर्ड स्टेट, ये दो हो गया. Third state, it represented more than 95% of the population. It represented more than 90% population. They paid the largest share of taxes. They paid the largest share of taxes. Had few privileges. And almost no influence on monarchy. No influence on monarchy. But this class was not homogeneous. It's a very common story. Peasants, the kisan, garib log. The largest section of the third state, the largest section of the third state, that is almost 80% of the entire population, 80% of the entire population. The great majority were landless. The great majority were landless or had marginal landholding or had marginal landholding. After rent, their share was reduced to rent. Their share was reduced to, not by, to 1/3 or 1/4 of what produced. 1/4 of what produced. They could not take wood from forest. They could not take wood from forest. Or could graze their animals, could graze, grazing, GRAZD, their animals on uncultivated land. The lines are getting clear? The burden was unbearable.
The burden of taxation was unbearable. Burden of taxation was unbearable. Forced labor was prevalent. Forced labor was prevalent. There were also taxes on roads and bridges. Roads and bridges. Then at middle class, उस पर टैक्स लगता था. आई होप यू नो समथिंग कॉल्ड एज टोल टैक्स. तुम जाओगे तो टोल दोगे ना, तो वे टोल ले लेते थे. मिडिल क्लास, इधर टोल है तुम्हारे आसपास कहीं? असम में है ना. मिडिल क्लास, it consisted of writers, doctors, judges, teachers, etc. And richer people. Like merchants and bankers. Like merchants and bankers. बाकी के चीज तुम अपने आप लिख लेना कि merchants and bankers बड़े अमीर, they were too rich, they were richer than the holders of the church and that of the most of the noble class. चुपचाप अपने आप से लिख लेना. But this class has no political rights. But this class has no political rights. It had no social status and suffered various humiliations.